हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज हम आपको +2 में आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 7 इंटीग्रल इज गोइंग ऑन दिस चैप्टर 7 इंटीग्रल 40 लेक्चर हैव बीन डन। आज हम ये 41th लेक्चर कर रहे हैं, 41वां लेक्चर इसी चैप्टर 7 पर। तो ये लास्ट miscellaneous exercise. Now integral is going to finish, okay, from NCERT book, each and every question. तो क्वेश्चन 36 to 40 MCQ लास्ट क्वेश्चंस हैं, MCQ also here. तो miscellaneous also today will be over. आज ये चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें सॉल्व किए हैं, सभी को एक्सप्लेन किया, सभी को डिस्कस किया है। तो ऑन दिस चैप्टर दिस क्वेश्चन नंबर 36 इज प्रूव दैट दिस 0 to π/4 लिमिट 2 tan cube x dx वैल्यू इज इक्वल टू π/2 - 1. वी हैव टू प्रूव दिस वैल्यू इज π/2 - 1. नाउ वी आर डूइंग दिस by brackets of tan cube x, tan x into tan square x. तो tan square x by the trigonometry sec square x minus 1 we know, okay. 1 plus tan square is equal to sec square, so tan square sec square minus 1, okay. Now here multiply tan x with sec square x, तो tan x sec square x one part, दूसरा पार्ट बन गया tan x into -1, तो माइनस tan x इंटीग्रल अलग हो गया, ठीक है। और 2 आउट था पूरे क्वेश्चन से, 2 हमने आउट ले लिया। तो 2 इसमें सब्स्टिट्यूशन किया फर्स्ट इंटीग्रल में, लेट tan x इज इक्वल टू t। अब tan x को इसमें t मान लिया, इसका डेरिवेटिव हमारे पास रखा हुआ है sec स्क्वायर x dx। तो sec स्क्वायर x dx dt ये dt में चला जाएगा, तो ये बन गया t इंटू dt, ओके। एंड लिमिट हेयर बिकॉज x वैल्यू इज 0, तो here x 0, तो tan 0 is t and tan 0 0, तो 0 as it is. If x is π/4, तो tan π/4 होता है हमारा 1, तो then t is equal to 1 हो गया। तो 0 to 1 हो गया, न्यू वेरिएबल t में लिमिट चेंज हो गई और ये t dt बन गया। और दिस सेकेंड एज इट इज tan x, बिकॉज tan x का हम जानते हैं इंटीग्रल डायरेक्ट log sec x, तो log sec x and limit here 0 to π/4 as it is in x variable, done. And 2 operate for both this, ठीक। Now this t integral t square by 2 and 2 out, तो 2 cancel, upper limit 1 lower limit 0 minus 2 log sec x upper limit sec π/4 that is equal to √2, तो log √2 minus sec 0 lower limit, sec 0 is 1 because cos 0 also 1, so reciprocal 1 is 1, so log 1 and log 1 value we know 0, so log value 1, log 1 is 0 and log √2 as it is twice log √2, then 2 will go पावर में, तो √2 पावर 2 यानी होल स्क्वायर ऑफ √2 हो जाएगा ये n log m पावर n हो जाएगी, तो ये 2 पावर में जाएगा, तो √2 होल स्क्वायर मीन्स 2 बन जाएगा, तो देन माइनस log 2, 1 माइनस log 2, यहाँ लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस 0, देन 1 माइनस log 2, so this is your 1 minus log 2 is the solution of this question, okay. Prove that 2 tan cube x dx is 1 minus log 2, so hence prove this, okay. Similarly next question, question number 37. What is 37? 37 is integral 0 to 1 limit sin inverse x dx, sin inverse x का इंटीग्रल, prove that this integral is equal to π/2 - 1. So now here taken this and multiply with 1, सेम रहता है मल्टीप्लाई 1 करके, तो साइन इनवर्स x इंटू 1, तो हेयर इंटीग्रल बाय पार्ट वी कैन डू, साइन इनवर्स x का इंटीग्रल, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसका इंटीग्रल करना तो इसी टाइप से करेंगे, इंटू 1 करके, एंड u इंटू वी, यानी फर्स्ट
into second. Integral by part. तो what is formula integral by part? And आइलेट के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट सेकंड ऑर्डर देते हैं. ओके, आइलेट, आई टोल्ड. ओके, आई मीन्स इनवर्स, एल मीन्स लॉग, ए मीन्स आइलेट, ए मीन्स अलजेब्रा, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्री, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल. तो ऑर्डिंग according to this order we are taking first second. Okay, now here what is integral of first into second? That is first as it is, sin inverse x as it is into integral of second. Integral of 1 dx is x under the limit 0 to 1 minus integral whole part and derivative of the first. So first is our sin inverse x. Derivative of sin inverse x we know 1 upon square root 1 minus x square derivative, and into integral of second into x and whole bracket then again dx because integral of whole. Simplify that. This is minus x dx. In numerator we can say minus out है, तो minus x dx. So we can take 1 minus x square is equal to t square. So denominator 1 minus x square, let it is t square. Derivative with respect to x both sides, minus 2x dx is equal to 2t dt. So 2 cancel. तो माइनस एक्स डी एक्स वैल्यू इज माइनस एक्स डी एक्स हमारे पास है, दैट टी इंटू डी टी. तो दिस वैल्यू इज हियर टी डी टी. ओके, दिस इंटीग्रल टी डी टी डन अपॉन दिस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू टी आ जाएगा. तो दिस टी देन टी टी कैंसिल यानी 1 डी टी. तो इंटीग्रल 1 डी टी टी and limit change here by this substitution. Okay, if x is 0 so t is 1. Okay, if x is 1 तो 1 minus 1 0, तो t is 0, तो 1 to 0 हो गई limit. Okay, and this plus हो गया because minus x यूज हो गया. minus x dx is dt, t dt plus then here upper limit minus lower limit. ठीक है, तो अपर लिमिट क्या होगी इसकी 1. तो साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2 इंटू 1, तो पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट यानी 0 पुट किया. साइन इनवर्स 0 0 0 इंटू 0 0, तो माइनस 0. देन दिस पाई बाई 2 प्लस दिस t and limit here 1 to 0 1 to 0. now upper limit is 0, तो पाई बाई 2 माइनस प्लस अपर लिमिट 0. ओके, 0 हो गया प्लस 0 एंड माइनस लोअर लिमिट 1, तो माइनस 1. तो इट मीन्स पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस 1 एंड देन इट इज पाई बाई 2 माइनस 1. हैंस प्रूव्ड. ये हमें प्रूव करना था कि इंटीग्रल अंडर 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस 1 होता है. ओके, 0 to 1 के अंदर. डन. तो नाउ लाइक दिस सब्सटीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस लास्ट के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन विल स्टार्ट नाउ आफ्टर 37, 38, 39 एंड 40. 3 क्वेश्चन एमसीक्यू. ओके, आफ्टर दैट नाउ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विल डू. हाँ बेटा, हेलो, कंटिन्यूअस बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू स्टार्ट हो गए. नाउ लास्ट क्वेश्चन हैं 3 क्वेश्चन एमसीक्यू. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, see all 3 questions. Okay, now question number 38. Till end you have to see the video because these are the most important question MCQ, last 3 question. Okay, not leave in the between. Now question 38 MCQ. Integral dx upon e power x plus e power minus x is equal to A option tan inverse e power x, tan inverse e power x, tan inverse e power x plus c. B option tan inverse e power minus x plus c. C option log e power x minus e power minus x plus c. and D option log e power x plus e power minus x plus c. Now which will be the correct option? We have to see by solution. I let it is I and let here what, let e power x is equal to t. So let e power x is equal to t, e power x dx will be dt. So dx is equal to dt upon e power x and e power x put again, e power x put again t.
तो dt upon t, dx value dt upon t. Now put here dx value in the question, dt upon t. Okay, question dx dt upon t upon e power x is t plus 1 अपॉन ई पावर एक्स बन जाएगा, नेगेटिव पावर है तो 1 अपॉन ई पावर एक्स कह सकते हैं, देन 1 अपॉन टी बन जाएगा। तो टी प्लस 1 अपॉन टी एल्शियम लेंगे तो इट इज टी स्क्वायर प्लस 1, तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी एंड टी विल कैंसिल, ओके, दैट इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर। अंडरस्टैंड दिस, LCM t and this t will cancel and then 1 plus t square, and this integral we know dx upon 1 plus x square integral with respect to x we know tan inverse x, so it is with respect to t same tan inverse t, okay, then we know this integral and plus constant, so tan inverse t, what is t? T is e power x, then tan inverse e power x plus c, so which option here? A option, tan inverse e power x plus c. A option is correct option. Done. Okay. Now next question, similarly 39th question. 39 is cos 2x whole divided by sin x plus cos x whole square. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, क्योंकि इसमें एक टेक्निक है, इसको ध्यान रखना है। क्या है कि sin x प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर सॉल्व कर लो पहले, ओके, तब देखो उसका डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर डायरेक्ट इसको टी मानोगे तो डायरेक्ट ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको फिर एकदम, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें ये ऑप्शन गिवन है, ए ऑप्शन माइनस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, बी ऑप्शन log साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, सी ऑप्शन log साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, and D option 1 upon sin x plus cos x whole square plus c. Now check here which option is correct. Now cos 2x dx upon इसका होल स्क्वायर ओपन कर लिया हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, और ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 2 sin x cos x sin 2x, तो 1 प्लस साइन 2x बन गया। नाउ इसको सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ कि लेट 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू टी, और इसको t मानकर इसका डेरिवेटिव किया विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 का 0 हो गया, साइन 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x एंड इंटू 2 बाई चेन रूल, तो 2 cos 2x dx dt, तो आपको यहाँ 2 बनाना था तो 1/2 यानी 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 2 cos 2x dx बन गया, तो 2 cos dx इज इक्वल टू dt, तो ये तो बन गया dt एंड ये बन गया डिनोमिनेटर बन गया t, तो dt अपॉन टी, dt अपॉन टी ध्यान देंगे, और 1/2 आउट, डन। अब dt अपॉन टी का जो हम इंटीग्रल लेंगे ये log t हो गया डायरेक्ट, तो हाफ log t प्लस कांस्टेंट, अब हाफ log t, t का ओरिजिनल पुट कर दो, ओरिजिनल क्या है हमारा t 1 प्लस साइन 2x, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन 2x पुट कर दिया। अब 1 प्लस साइन 2x यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ना ए में ना बी में ना सी में ना डी में, तो अब log 1 प्लस साइन 2x है, तो फिर इसको रिवर्स कर लिया, वही जो हमने ओरिजिनल था, ये क्या है, ये है साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर है। 1 प्लस साइन 2x इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर, वी हैव सॉल्व्ड हियर, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज, 1 प्लस साइन 2x इज साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर, ओके। इंटीग्रल तो डन हो गया। अब ये हाफ है बाहर, तो n log m, फिर वही फॉर्मूला n log m इज log m पावर n, तो पावर n यानी पावर 1/2 यानी पावर रूट, यानी रूट हो जाएगा इसका अंदर, और अंदर हमारा क्या बन गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर, एंड हाफ आउट था तो वो रूट में चला गया अंदर बाय log फॉर्मूला, देन रूट एंड स्क्वायर इट मींस स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो log साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस कांस्टेंट। ड्यू टू दिस इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके बेटा, ड्यू टू दिस इट इज इंपॉर्टेंट, डन। तो इसमें विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, log साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, log साइन एक्स प्लस कोस एक्स मॉडुलस प्लस सी, दिस इज योर बी ऑप्शन, ओके। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, डन। तो देन इट इज क्वेश्चन 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिमिलरली we can do the next question, okay। now next question beta yes, next question continuous beta, next question, question number 40, okay।
This question number 40 is MCQ also, this also last question. Now what is this? This is also most important. This question is most important. Okay. Why? Because here general question है, general function है. What is this? This is if f of a plus b minus x is fx. ये गिवन है, इसका यूज करना है कि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स की जगह एफ एक्स पुट करना है. देन इंटीग्रल ए टू बी लिमिट एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स जो फंक्शन है उसकी वैल्यू इज इक्वल टू ए ऑप्शन ए प्लस बी बाई टू इंटू एफ ऑफ बी माइनस एक्स डी एक्स, बी ऑप्शन ए प्लस बी बाई टू ए टू बी लिमिट एफ ऑफ बी प्लस एक्स डी एक्स, एंड सी ऑप्शन बी माइनस ए बाई टू इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, and D option a plus b by 2 integral a to b fx dx. So we have to check here which option is correct option. Now here use the property, let it is I a to b integral x fx dx. तो इस I की वैल्यू सॉल्व किया, इसमें प्रॉपर्टी लगा a to b fx dx इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b f ए प्लस बी माइनस एक्स. तो क्या बन गया, एक्स के प्लेस पर ए प्लस बी माइनस एक्स पुट कर दिया और यहाँ एक्स के प्लेस पर ए प्लस बी माइनस एक्स, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी इन द इंटीग्रल. ओके क्लियर. इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स. तो एक्स के प्लस पर ए प्लस बी माइनस एक्स हो गया. ठीक है, इंटीग्रल एज इट इज. नाउ आफ्टर दैट कंटिन्यूअस, व्हाट इज दिस कि इन दोनों को ऐड कर दिया, ये और ये दोनों आई हैं, आई प्लस आई ऐड किया तो 2i बन गया. ओके, दिस प्लस दिस 2i. अब 2i इज इक्वल टू क्या ऐड किया, एक्स एफ एक्स डी एक्स, तो ये बन गया और प्लस अब ये क्या दो पार्ट बन गए. एक तो बन गया a प्लस बी इंटू एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो a प्लस बी इंटू एफ ए प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू वी नो, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स. तो इसको हमने एफ एक्स पुट कर दिया तो एफ एक्स ए प्लस बी इंटू एफ एक्स बन गया और माइनस एक्स इंटू एफ एक्स बन गया, ये एफ एक्स एंड दिस एक्स, तो माइनस एक्स इंटू एफ एक्स बन गया. तो अब एक तो प्लस एक्स इंटू एफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ एक्स इंटीग्रल सेम ए टू बी, तो ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस. ओके, ये भी आई बन गया सेम, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया 2i इज इक्वल टू क्या बन गया a प्लस बी इंटू एफ एक्स इंटीग्रल ए टू बी. ए प्लस बी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया तो दिस विच ऑप्शन दिस 2i इज इक्वल टू दिस, देन i इज इक्वल टू ये 2 डिवाइड में आ गया तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. तो विच ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, दिस करेक्ट ऑप्शन. डन. ओके बेटा, तो लाइक दिस टेक्निक एंड यूज दिस. ओके, एंड प्रॉपर्टी, पहले प्रॉपर्टी यूज किया फिर ये यूज कर दिया फंक्शन की वैल्यू. ओके बेटा, क्लियर. डन. नाउ लाइक, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact and guide them. They must forward the video to the students who are studying in +2. इंटीग्रल हो रहा है आजकल, इम्पोर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, इंटीग्रल में लास्ट हो गया है, फिनिश हो गया. कोई किसी को प्रॉब्लम हो, क्वारी हो कभी भी कोई भी इंटीग्रल पर, तो वो मेरे से पूछ सकते हैं. ओके, कॉन्टेक्ट है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर आप जो है कॉल भी कर सकते हैं और थ्रू मैसेज आल्सो यू कैन आस्क मी एवरी क्वारी विच यू वांट. ओके, नाउ गाइड द your forward students, you subscribe the channel. Who have not subscribed, they must subscribe the channel, then they will get the benefit to get the all videos automatically on their device. मतलब उनके मोबाइल पर या जो भी डिवाइस है उस पर सारी वीडियो के लिंक, सारी वीडियो आ जाएंगे, +2 की सारी, +1 के सारे, 10th 11th के सारे, 10th के सारे. तो जो भी उनको देखना है या कोई उनके ब्रदर सिस्टर हैं 10th में, 11th में, 12th में,
तो सब वीडियो उनको मिल जाएंगी। आप सब्सक्राइब करो एक बार चैनल को, और सब्सक्राइब करके ओके लाइक करो एंड शेयर टू द योर फ्रेंड फॉरवर्ड to get the benefit, okay, and guide them forward. They also subscribe the channel and write the comment in comment box, because you are not writing the comment जरूर लिखें और वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें। ये नहीं कि बाहर से ओपन कर दिया और बस, उसको देखो, लास्ट तक देखो, तभी उसमें कुछ मिलेगा। ओके, ठीक है, पूरा लेक्चर देखो। ओके, नाउ थैंक यू।